I hope everyone is fine. Today we discuss about the second lesson, biological classification. You know what is classification? Convenient grouping of organisms is known as classification, which make it easy to study of the bioresources and its diversity. In previous chapter, we discussed about the classification. Here we discuss about biological classification. What is biological classification? Kinds of biologists, time to time given kinds of biological classification, out of which some are so acceptable and famous. The first biological classification is here in Linnaeus time, two kingdom classification system. And these two kingdom classification system given by the Carolus Linnaeus, and according to Carolus Linnaeus, the organisms which are existing on Earth get categorized into two convenient groups, group Plantae and Animalia. Linnaeus group to whole organisms which are exist on Earth in two categories, Plantae and this is the two kingdom classification. In same way, three kingdom classification, four kingdom classifications are also coming. But Arya Whitakers are the taxonomists who give the five kingdom classification system in 1969. According to five kingdom classification system, the organisms which are existing on Earth categorized into five categories. Yeah, five convenient groups. That first one is Monera, second one is Protista, and third one is Fungi, fourth one is Plantae, and fifth one is Animal. वर्गीकरण की व्यवस्था, जैविक वर्गीकरण की व्यवस्था इसलिए लाई गई जिससे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी और भी इजी हो जाए. For easy study of organisms, biologists give the biological classification. Taxonomists give the biological classification. Nowadays, in higher classes, we will also discuss about the six kingdom classification system, but in higher classes. Now in intermediate, we only discuss about the five kingdom classification system, which is given by the R.S. Whitaker, 1960. We, in sequence, explain the Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. But a chart given in your NCERT book, who briefly interpreted what is Monera, what is Protista, what is Fungi, what is Plantae and Animalia, in a very brief form, but very, very important. If this index you learn, no doubt you distinct Monera, Protista, you able to distinct Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So we directly come on this index and we learn why Protista is Protista and why Monera is Monera. ये हम इससे सीखेंगे इस इंडेक्स के माध्यम से. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए.
कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर को बेसिस बना करके क्लासिफिकेशन की बात की गई है, जिसमें सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो बेसिस है, हम ये कह सकते हैं जैसे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको समझते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेस क्या है? तो सबसे जो पहला बेस था सेल टाइप। सेल टाइप, सेल बेटा दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स, दूसरे को कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोट्स। तो सेल टाइप्स के बेस पे हम अगर बांटते हैं तो फिर हम सबसे पहले सारे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, दूसरे को कहते हैं, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोट, इसको कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और इसको कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आता है मोनेरा, मोनेरा, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी शुरुआत प्रोटिस्टा से लेकर के और एनिमैलिया तक, एनिमैलिया तक। दूसरा जो बेटा कैटेगरी है या जो दूसरा सिम्टम है, दूसरा बेसिस है कि सेल वॉल, सेल वॉल, इसकी तीन बातें, पहली बात तो बनती है, इसमें जो सेल वॉल होगी वो किन किन चीजों से बनी है। तो अगर सेल वॉल की बात करें बेटा तो इसमें सबसे पहले जो मोनेरा होता है, ये इसके अंदर सेल वॉल तो होता है बट नॉन सेलुलोजिक होता है, नॉन सेलुलोजिक। एक सेल वॉल होती है नॉन सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी, उसी को नॉन सेल्यूलोजिक कहते हैं। अब वो कुछ पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है बट नॉन सेल्यूलोज। फिर एक है जो कैटेगरी, वो सेल्यूलोज की कैटेगरी, ये सेल्यूलोज की बनी होगी। अगर देखा जाए तो एक ये नॉन सेल्यूलोजिक है, प्रोटिस्टा में भी होती है तो वो हो सकता है कि सेल्यूलोज की हो। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, सेल्यूलोज होती है जो काइटिन की बनी होती है। तो देखते हैं इसमें, ये यहां पर लिख सकते हैं अमाइनो एसिड प्लस पॉली सेकेराइड, यहां पे काइटिन, काइटिन और यहां पे सेल्यूलोज। तो बेटा ये जो जैसे मोनेरा है, मोनेरा तो ये वाला पाया जाएगा, पहला वाला नॉन सेल्यूलोजिक होगा ये मोनेरा में, एमिनो एसिड्स। ये काइटिन फंजाई में पाया जाता है, काइटिन युक्त जो वॉल होती है फंजाई में, सेल्यूलोज प्लांटी में होती है, और बहुत तो ऐसे होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तो वो एनिमलिया है, नो सेल वॉल इसमें। जो सेल वॉल है वो एनिमलिया में नहीं पाई जाती, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो एक ये सब में 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन के जो बेसिस है उनकी बात कर रहा हूं। एक पहला आधार उन्होंने बताया सेल टाइप को, दूसरा आधार बनाया सेल वॉल को, और जो तीसरी बेसिस उन्होंने बनाई वो है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब कुछ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन कुछ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब कुछ का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ दो। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो सिर्फ मोनेरा है, और अगर प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ से वॉल होती है, वो प्रोटिस्टा से लेके और एनिमेलिया सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। फिर इसी तरह से जो फोर्थ बेसिस है इनका, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी, इसको देखते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको देखते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ही आर.एस. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, और इसमें उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्मिक, एसेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक। ए सेलुलर, फिर यहीं पे लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, फिर है सेलुलर, फिर है टीशू, फिर उसके बाद है ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली बॉडी। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब इसमें ये जो फाइनली बॉडी है, तो हम कह सकते हैं ए सेलुलर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का होता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का बेसिस है। I mean, the body organization of an organism is also a very important basis for the classification, for their classification. And next one, basis of classification is mode of nutrition. Mode of nutrition. Mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर देखा जाए तो बेसिकली वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। अब इसमें अगर कैटेगरी कर दिया जाए तो हमको मिलता है पैरासिटिक, फिर है ये नेक्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक, और ये है होलोजोइक। तो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर ने जो आर.एच. व्हिटेकर ने जो बेसिस लिया था क्लासिफिकेशन का, वो ये लिया। तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, इसी पे क्लासिफाई किया था इसने। तो बेटा जी ये बिल्कुल जरूरी है आपको ये बात जाननी है कि इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अब जहां तक सवाल उठता है कि इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ नीट में जाके सवाल बदल जाएगा। नीट में सवाल कैसे बनता है? The wall of fungi is made up of, the wall of fungi is made up of chitin, non-cellulosic material, absent and cellulosic.
तो अब जो आंसर जिसको पता होगा वो बताएगा कि काइटिन की बनी। पूछ सकता है कि इन मोनेरा which types of cell is present? तो prokaryotic cell. In monera, nuclear organizations are nuclear membranes are present or absent? Absent होता है। अब इस तरह से हम इससे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। जो आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स है उसको भी थोड़ा सा शेयर करते हैं हम आपसे, वो आपके ग्रुप में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको शेयर करते हैं हमसे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले लें फटाफट। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से समझने का और प्रयास करते हैं। हमने कुल 5 कैरेक्टर लिया है, 5, और वो 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन। जिसमें सबसे पहले हमने लिया है सेल टाइप, और जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है सेल टाइप। जो दूसरा कैरेक्टर है सेल वॉल, दूसरा कैरेक्टर है सेल वॉल। जो तीसरा कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। And fourth one character is body organization. Body organization. And जो फिफ्थ कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका फिफ्थ कैरेक्टर है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इसी के बारे में आपने अभी पढ़ा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बट अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो उन्होंने आरएस विटेकर ने जो ग्रुप डिसाइड करके दिया है मोनेरा प्रतिष्ठा फंजाई, उनके बारे में अगर हम सुने, जो ग्रुप मिला है मोनेरा, फिर है फंजाई, इसमें तो आएगा नहीं, फिलहाल कोशिश करते हैं। सॉरी, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, लास्ट वन एलिमेंट। तो बेटा ये तो आपके जो 5 कैरेक्टर है, ये आपके 5 ग्रुप्स भी बने हुए हैं, क्लास भी बने हुए हैं, क्लासिफिकेशन। अब अगर सेल टाइप पूछ रहा है तो सेल टाइप हमने कहा कि जो मोनेरा है, जो बेटा मोनेरा है, इस अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक मोनेरा में जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक होगी। बाकी प्रोटिस्टा से लेके एनिमलिया तक की यूकैरियोटिक यू आगे कैरियोटिक लिखा है, यूकैरियोटिक। और अगर सेल वॉल देखी जाए तो हमने कहा कि सेल वॉल में नॉन सेलुलोजिक, इसमें सेलुलोज नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स
और अमीनो एसिड्स होता है। इसमें जो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड। अब कुछ में तो प्रोटिस्टा में आते हैं तो प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेलुलर होती है, कुछ में नहीं होती। तो यहां पे लिख दिया प्रेजेंट इन सम, यहां पे लिख दिया प्रेजेंट इन सम। कुछ में सेलुलर है, कुछ में नहीं है, प्रोटिस्टा में तो प्रेजेंट इन सम। प्रेजेंट विद काइटिन, अगर फंजाई की बात करते तो हमने बताया है इसलिए प्रेजेंट विद काइटिन, यानी फंजाई की जो सेलवाल है वो काइटिन की बनी होगी, और जो प्लांट की है उसमें तो प्रेजेंट होती ही होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें एब्सेंट है। जो एनिमल होते हैं उनमें सेलवाल एब्सेंट है। अब अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और बाकी में सब में प्रेजेंट होती है, सब में ही प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें सब में प्रेजेंट, सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है इनमें सेलुलर लेवल, यहां भी सेलुलर, इन दोनों में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसकी पूरी शरीर एक ही सेल की बनी हो, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो बात को? सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल सेल। फिर उसके बाद है ये जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर लेवल होता है, मल्टी सेलुलर लेवल एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट एक ऐसा फंजाई है तो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब के सब मल्टी सेलुलर होता है। फिर उसी तरह से चलते हैं, अगर प्लांटी में आते हैं टिश्यू और ऑर्गन लेवल का, दोनों तरह के प्लांट, टिश्यू एंड ऑर्गन दोनों लेवल। उसी तरह से अगर हम एनिमल में चले तो एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों लेवल का है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। और बेटा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रोपिक भी होता है, यानी जो आपका मोनेरा होता है ये ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक दोनों रखता है। ऑटोट्रोपिक as well as heterotrophic, बाकी अगर देखा जाए तो जो प्रोटिस्टा है इसमें भी वही बात है, ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटेरोट्रोपिक। लेकिन जब हम फंजाई में जाते हैं तो हेटेरोट्रोपिक होता है। फंजाई कैसा होता है? हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक होता है, और उस हेटेरोट्रोफिक में भी मोस्टली सैपेरोफाइटिक एंड सम पैरासाइटिक। ये
प्लांट में जाते हैं तो वो सिर्फ ऑटोट्रोफिक होते हैं। जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, और जो एनिमल होता है ये हेटेरोट्रोफिक। तो आर्यस विटेकर में ये कुल 5 कैरेक्टर वाला, तो आर्यस विटेकर का क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो बेटा, क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ रहे हैं वो ये पूरा चार्ट है। तो आप मेरे समझ से इसकी स्क्रीन शॉट आप एक बार ले लीजिए, बहुत जल्दी से सारे लोग स्क्रीन शॉट इसकी लीजिए। चलिए, हमारी समस्या आपने उसको ले लिया होगा स्क्रीन शॉट इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मोनेरा की। मोनेरा क्या था? किंगडम मोनेरा। इसको साफ कर देते हैं, 3 कर देते बेटा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो हमें एक बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी। कुछ वर्ड होंगे जिन्हें बिल्कुल याद करना होगा। क्या याद करना होगा? मोनेरा की इसके लिए जरूरी है। तो सबसे अगर ये मोनेरियंस है तो ये प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। अगर बेटा जी ये मोनेरियंस आप मोनेरा किंगडम की बात करते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोकैरियोट्स। ये एकदम कंफर्म है, ये चार्ट से भी क्लियर है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएंगी और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। दूसरी बात, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट हो। ये दो बात बिल्कुल आपके ध्यान में होनी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट्स, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बेटा जी। लेकिन अगर हम कहें कि ये सब कुछ हमको किसमें दिखाई देगा, कोई एग्जांपल बताएंगे सर कि उसमें प्रोकैरियोट्स हो, न्यूक्लियस एब्सेंट हो, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, ये सब किसमें होगा? तो इसका एग्जांपल जो होगा बेटा जी वो होगा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में होगा ऐसा।
ऐसा आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। अब आपका ये WA हम कर देते हैं, होमवर्क आपके लिए कर देते हैं कि आप ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, ये आपको पता है। Tomorrow when you join the class, then you represent the structure of bacteria on the screen, every student. Just we discuss about the some important things according to the Monera. On the basis of feeding habit, on the basis of locomotory structures, on the basis of structure, bacteria are of many kinds. On the basis of their shape, bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया किसके ऊपर? ऑन बेसिस ऑफ शेप। अगर हम शेप के बेस पे बात करें तो सबसे जो छोट मतलब कि बैक्टीरिया का जो कैटेगरी है वो कितनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इतने तरह की बैक्टीरिया होगी, ये 4 तरह की बैक्टीरिया। कौन कौन सी होती है? ये जो 4 कैटेगरी है बैक्टीरिया की, इसमें कौन कौन सा आता है? तो सबसे पहला आता है कोकी, COCCI, कोकी। और ये जो बैक्टीरिया होगी सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इसी में हो। सबका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, अभी मैं दूंगा, उस सारा काम आप करेंगे साथ ही, तभी ठीक है। तो कोकी, दूसरा है बैसिलस, दूसरा है बैसिली, BACILL, बैसिल, इसे बैसिलस कहते हैं, कोकस, बैसिलस। फिर स्पाइरिला, स्पाइरिला, जिसका स्ट्रक्चर जैसा है उस तरह की बात है, स्पाइरिला, SPIRILLA, स्पाइरिला। और फिर है वाइब्रो, ये इतनी कैटेगरी होती है जी बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग। अगर इसका शेप देखना हो कि शेप कैसा है, ये कोकाई हो गई है, कोकस मतलब ये स्फेरिकल शेप। अगर बैसिलाई की बात करें तो बैसिली यानी बैसिलस रॉड शेप होती है, इस तरह का रॉड शेप बैक्टीरिया, इस तरह रॉड शेप बैक्टीरिया। अगर स्पाइरिला की बात करें तो ये कुछ इस तरह के टेढ़े टेढ़े होते हैं, ये स्पाइरिला। अब अगर स्पाइरिला की बात करें तो फिर अच्छा, इसमें लोकोमोटरी आर्गन भी होता है, फ्लैजिला पाया जाता है स्पाइरिला, ये फ्लैजिलम होता है। और फिर वेबरी होती है, कॉमा शेप होती है, कॉमा शेप, कॉमा शेप। हाँ जी। तो बेटा ये इतने तरह के बैक्टीरिया होती है इसके शेप के कारण। अब आपका काम क्या है? आप क्या जरूर करके आओगे,
इनका एग्जाम्पल लिखोगे, इनका आप एग्जाम्पल लिखोगे, इनका साइंटिफिक नेम लिखोगे एग्जाम्पल, और इसका यूज भी लिखोगे। मैं कल पूछूंगा आपसे, आप लोग काम तो करते रहे, मैं अपना काम करता रहता हूं। ये यूजेस है, ये एग्जाम्पल इसका है, यूज, और यूज के साथ साथ अब अगर हम ये पूछें आपसे कि छोड़ो आप यूज नहीं बल्कि डिजीज लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर। यहां पे लिख दो डिजीज, डिजीज सबका लिख के ले आना है, इससे कौन सा डिजीज हो ये करके आपको ले आना चाहिए। आगे की क्लास अगले दिन शुरू करेंगे हम, लेकिन ये काम आपको स्क्रीन नहीं आ रही। जी बेटा, नीचे की स्क्रीन नहीं आ रही। आ गई? यस सर। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले दिन क्लास में बात होगी। समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन कुछ भी है, बहुत इजी है, अभी तो बहुत ही इजी है ये सब चैप्टर, और बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में। ठीक है बेटा जी, सबको गुड मॉर्निंग अगेन। लीव कर रहा हूँ।